Hello guys, today we are going to discuss the features of management. Let's see what is features. Features means nature or a characteristics of management. We already discussed the meaning of management. Now we are going to discuss the features of management. Let's see the features of management. Management is a goal oriented process. We all know that any organization exists, है ना? They have some goal this to be achieved. We also know that every organization, a small or a big organization, any institution, they have some their goal, but different organization has a different goal. Means in the organization number of people working, or we can the number of individual working with the different goal or interest, but the management is a process. Means this unite the efforts of different individual towards the common direction, toward the achievement of common goal in the organization. I think the goal management is a goal oriented process. I think you understand this. Now come to the second, dynamic activity. Management is a dynamic activity. Means management is keeps on changing. Means environment is very uncertain. We are no dynamic. It keeps on changing. The day by day, the numbers of changes, है ना, coming up in the market. As we all know that we are discussing about the dynamic. We know that environment is dynamic. It keeps on changing. We can know that social activities, economic activity, political, है ना, these are the activities, so that the environments are keeps on changing. There is day by day number of advancement were there. Now come to this next, multidimensional. Multidimensional management is a multidimensional. How multidimensional? Management perform the three more works. Let's see, management of work, management of people, and management of operation. Management of work means any organization exists, they perform some work. means कोई भी organization अगर exist करती है वो कुछ ना कुछ work perform करती है. जैसे कि कोई भी किसी व्यक्ति ने फैक्ट्री सेटअप की, तो फैक्ट्री सेटअप की है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा. किसी ने गारमेंट की शॉप, है ना, न्यू शॉप खोली है तो वो क्या करेगा, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट ऑफ वर्क. नाउ कम टू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल. हाउ द पीपल शुड बी मैनेज. मीन्स देखो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है. मीन्स इट इज़ अ ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. बिना ह्यूमन बींग से फिजिकल एसेट का कोई रोल नहीं है. अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज का अच्छे बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसका यूज़ कर सकता है. मीन्स मैनेजमेंट ऑफ पीपल डील विथ टू थिंग्स. It implies dealing with the employees as an individual with a diverse need. अपन को पता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, एक मैनेजमेंट में आते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी अपनी अलग अलग नीड्स रहती हैं, उनकी नीड्स और वांट्स अलग अलग रहती हैं. उनको सेटिस्फाई कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन करती है ना. नाउ कम टू दिस. इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स रहती हैं, वांट्स रहते हैं, है ना. उनके एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में करना, मीन्स उनके एफर्ट्स को यूनाइट करना टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ, है ना, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कैसे कर सकते हैं, उनके एफर्ट्स को यूनाइट कोऑर्डिनेशन में कैसे ला सकते हैं, जैसे उनको मोटिवेट करना. हाउ वी आर मोटिवेटिंग देम. मीन्स जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस काम को उनको प्रोत्साहन देना, प्रमोट करना, सो दैट देयर स्ट्रेंथ शुड बी इफेक्टेड. मीन्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ अफेक्टिव एंड द वीकनेस इररिलेवेंट. जिस चीज़ में मतलब वो वीक हैं उस चीज़ को इग्नोर किया जाए, है ना, उस चीज़ पे ज़्यादा जोर ना डाला जाए. जिस चीज़ में वो अच्छे हैं अगर उनको वो टास्क असाइन किया जाएगा तो जिससे उनकी जो क्या है रहेगी, इफ़िशियंसी लेवल इंक्रीज होगी. इफ़िशियंसी लेवल इंक्रीज होगी सो दैट द परफॉर्मेंस इज आर गोइंग टू इंक्रीज एंड ऑब्वियसली द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज टू बी अचीविंग. नाउ वी आर कम टू द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल. मीन्स अपन वर्क को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से वर्क को मैनेज करेंगे, उस वर्क में how the people are going to engage and who is going to do that work is the management of operation. I think this is understand to you all.
Now come to the another feature. It is a continuous process. Management is a continuous process. It is a never ending process. Means one by one step is to be performed. What are the steps is to be performed? Means प्लानिंग करेंगे, है ना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे एंड कंट्रोलिंग करेंगे. प्लानिंग में सोचेंगे उनको क्या करना है, कैसे करना है ना. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट करेंगे, वो पीपल को रिक्रूट करेंगे स्टाफिंग में, है ना, राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब के लिए. डायरेक्टिंग करेंगे मीन्स मोटिवेट करेंगे, है ना, इंड्यूस करेंगे पीपल को. देन एट लास्ट कंट्रोलिंग, है ना, प्लान्ड परफॉर्म को एक्चुअल परफॉर्म से मैच करना, है ना, इस क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है. सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये चलता रहता है, लगातार चलती रहती है प्रोसेस. नाउ कम टू अनदर फीचर्स. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. एज वी ऑल नो दैट मैनेजमेंट मीन्स एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, इसमें नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल रहते हैं, सब एक साथ काम करते हैं, है ना. बट दे कम विद अ डिफरेंट माइंड सेट, है ना, विद अ डिफरेंट नीड्स, बट दे हैव देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना. ग्रुप एक्टिविटी है, सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, अपने डिफरेंट इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उनको क्या यूनाइट्स करना है, एक साथ लेके चलना है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट शुड बी अचीव. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हुआ तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट अपना तो खुद अचीव हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अगर अचीव हुआ मीन्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट बढ़ाना, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज सो दैट अ कॉम्पिटिटिव सैलरी, अच्छा गुड सैलरी मिले, है ना, उनको बोनस मिले, मैनी ऑफ द थिंग्स दे वर गेटिंग, है ना. तो इफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज, है ना, अचीविंग, देन ऑब्वियसली द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑटोमेटिकली अचीव्ड. Now come to the another feature is the intangible force. Management is an intangible force. It cannot be seen but it can be felt, experience, है ना. उसको अपन टच नहीं कर सकते. मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जिसको अपन टच नहीं कर सकते, बस उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है. इट इज़ लाइक अ सर्विसेज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप. नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. Let's clear the word objective. We know that objective means उद्देश्य, है ना. Objective refers to the end towards all the activity of an organization is directive. Objective का मतलब रहता है जो भी उद्देश्य है उसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटी हैं उसके लिए ही की जा रही हैं, मीन्स फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव ओनली, है ना. Objective are the three in the management: organizational objective, social objective and the personal objective. Organizational का क्या objective होते हैं यहाँ देखते हैं अपन. Organizational objective are the profit, survival and growth. As we all know that every organization has a objective of profit, because without profit any organization cannot be run further. Expand नहीं हो सकता उसमें, diversification नहीं हो सकता, because if we are talking about the business or economic activity are dealing with the profit motive. Means here economic activity deal with the buying and selling of goods and services, है ना, with the motive of profit. अगर प्रॉफिट नहीं होता तो फर्दर एक्सपांड नहीं हो सकता है, बिजनेस डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता. सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल. मीन्स टू से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करना है लंबे समय, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, देयर इज़ अ नीड फॉर द प्रॉफिट. Now come to the survival. Not only this, if we are talking about the profit, means प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है कि जो अपन खर्च कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्शन के लिए कुछ भी बना रहे हैं जिससे अपनी क्या है कॉस्ट कवर हो जाए. कॉस्ट कवर होने के साथ साथ क्या हो, आगे फ्यूचर में कोई भी रिस्क बियर करने के लिए जो अपन का मीन्स रिस्क लेते हैं अपन, जो बिजनेस करते हैं उसके लिए अपने लिए प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर रिस्क. Now come to the survival. Survival means जब भी अपन बिजनेस सेटअप करते हैं तो there is a mindset in our mind for the long term period. किसी भी बिजनेस को सेटअप करते हैं for with the aim for the long term, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए. तो सर्वाइवल, जैसे कि अगर अपन को मार्केट में सर्वाइव करना है तो मीन्स वी हैव टू सेटिस्फाई, है ना, विद द शेयर होल्डर. जो शेयर होल्डर हैं उनकी नीड्स को, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, प्रोवाइडिंग गुड्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू देम. सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है. नाउ कम टू द ग्रोथ. इफ
the organization has the two both profit and survival, then automatically the organization performing his work well, है ना, वेल पोजीशन मैनर ना, उसकी अच्छी पहुंच है, मतलब अच्छी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, ऑब्वियसली मीन्स ही इज गोइंग टू ग्रोथ इन अ फ्यूचर, मीन्स उसकी फ्यूचर में ग्रोथ ऑब्वियसली होगी। अगर ग्रोथ हुई तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, मीन्स कैसे ग्रोथ होगी, इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स बढ़ाना, नंबर ऑफ ब्रांचेस लाना, इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ बिजनेस फर्म से डील करना, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस के साथ आना, मीन्स इट लीड टू द ग्रोथ। I hope the organizational objective is clear to you all. Now come to the social objective. If we are talking about the social objective, means most probably we are dealing with the society. As we all know that business exists through the society only. Society provide the services to the business. So we are dealing with the social objective. How the social objective means to say environmental friendly method of production, है ना। एनवायरमेंट का जो है मीन्स विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन तो एनवायरमेंट को कुछ नुकसान ना हो, मीन्स इको फ्रेंडली मेथड अपन अडॉप्ट करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पर्यावरण को देखते हुए। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जिससे उनकी नीड्स सेटिस्फाई होगी, नीड्स सेटिस्फाई होगा तो उनका इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा एट अ रीजनेबल प्राइस, मीन्स उनको ठगना नहीं है कस्टमर को, प्रोवाइडिंग अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, इट्स अ सोशल नीड, है ना। एंड प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी के लिए, इट विल ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्टिव। और प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, है ना, it is also a social objective. I hope the social objective is clear to you all. Now come to the personal objective. Personal objective is the individual objective. We are talking here the individual objective. Employees का जो objective है उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ। कॉम्पिटिटिव सैलरी फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव सैलरी, है ना, हर एम्प्लॉय हर इंडिविजुअल की यही इच्छा रहती है कि उसको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, सैलरी के साथ बोनस मिले, है ना। नो पीर रिकॉग्निशन, पीर रिकॉग्निशन मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेटेड किया जाए नंबर्स ऑफ स्कीम्स के साथ, है ना, मोटिवेशन है लगातार, है ना। पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, है ना, हर एम्प्लॉयज़ के लिए सो दैट उनकी पर्सनल ग्रोथ हो। देन गुड वर्किंग कंडीशन एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, किसी भी एम्प्लॉय को अगर अच्छे से काम मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में एम्प्लॉय को काम करना है, उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करना है तो उसके लिए गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए जिससे उनको कोई काम करने में कोई भी परेशानी ना हो, मीन्स हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉय। सो इट विल लीड टू help in achievement of organizational goal. If the organizational goal is to be achieved, then automatically the personal objective is to be fulfilled. I hope the concept is clear to you all and thank you for watching this video. Thank you.